Hello, friends. A very warm welcome. And in this session, we are going to take socialism from the perspective of political science and international relations. You must have seen throughout the series, the goal had been to be natural and to give the best of understanding in very simple terms. Nothing to be proved as such, but then idea will be to bring as many keywords as possible and to correlate these things with the answer writing later on, and also to see that when you are revising what kind of more germinative and more innovative ideas you can bring into the mindset. With the same approach, let's go and have a look at what we can think and learn with respect to socialism. And like every time, I'll be asking Oshit to go through it, and with the flow and with rhythm, we will try not to intervene in between, but to make some points and to write down ideas so that they can be discussed separately. Thank you very much. Let's start. Yes, sir. So we have discussed several ideology, starting from liberalism, then Marxism, idealism, then coming to socialism. So socialism principle is not new to even subcontinent, Indian subcontinent as well as in Western Europe. There was an element of socialism practiced by several empires, several kings, and even in India, uh, the role of welfare state as proposed by Chanakya in Arthashastra. Even Ashoka Dhamma was there was some element of socialism, not exactly socialism as an ideology, but some element. For example, giving of loans during a famine, which has been mentioned in the uh, edict, pillar edict in Nepal. Second would be element of socialism were there even in the religious scripture as well. For example, Mahabharat, Buddhism, Jainism scripture talked about common good, सबके लिए welfareism. What are the duty of the king towards its citizen, towards its subject. तो सब कुछ element of socialism were always present beneath the surface, but socialism evolved as a ideology in 18th century. कैसे? When there was a rise of mercantilism in 15th 16th century, and associated with that there was a reformism in the European countries as well as industrial revolution. After that, when there was a rise of capitalism, there again there was a huge working class population that were demanding adequate rights within the established structure. That is why there were talks going on regarding how to integrate workers into the capitalist model, how to ensure that they get adequate rights with regarding to labor reform, um, then hourly wages, etc. तब जाकर socialism धीरे धीरे it percolated, and there are several important thinkers such as Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon, even Karl Marx that have commented on socialism, and they have given direction to the socialism. तो basic socialism मतलब है क्या? Socialism is talking about common good, सबके लिए, whereas liberalism talked about individuality. Socialism is common good. It is welfare centric. It is state centric. It is society centric. It is talking about equality within society, equal protection of law, as well as cooperation, brotherhood, public ownership. So in three aspects, for example, public ownership of materials, resources, so that adequate redistribution of wealth can be created is socialism. It requires state intervention in economic model, and as well as it also requires working class population, तभी जाके सोशलिज्म अचीव हो सकता है. तो रॉबर्ट ओवन और उसके पहले जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है 1789 में, तो बबर्फ और कॉन्स्पिरेसी ऑफ इक्वल्स 1790s के समय में इट टॉक्ड अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी हटना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, ताकि जो थर्ड स्टेट है, सेकंड स्टेट है, दोनों के बीच में इक्वालिटी है. तो देयर वर सेवरल फ्रेंच सोशलिस्ट, लेकिन उसमें से इंग्लिश सोशलिस्ट भी थे. फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट ओवन, वो बात करते थे कि एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिससे सबको कोऑपरेट करे एक दूसरे से. तो कोऑपरेटिव मॉडल जो आज हम लोग बात करते हैं, इट इज ऑल्सो ड्रिवन फ्रॉम ओवनिज्म. वो बात करते थे कि हर कोई कोऑपरेट करेंगे, द सोसाइटी विल बी मोर मैच्योर्ड, मोर फैमिली ओरिएंटेड, मोर सोशल ओरिएंटेड, और जो हम लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन कर सकते हैं खुद ही. ही लेड ऑन द कीवर्ड
सोशलिस्ट इन 1827। लेकिन उनका जो आइडियल था वो यूटोपियन था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कोई आपस में कोलैबोरेशन रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, ब्रदरहुड रहे, लेकिन स्टेट का रोल बहुत कम रहे, सिर्फ कोऑपरेशन के हिसाब से चले। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है इन रियल वर्ल्ड कि स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दो इंडिविजुअल है जो कोऑपरेटिव है उनके बीच में जो इशू आएगा वो कौन सॉल्व करेगा? दैट इज वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ स्टेट। चार्ल्स फॉरले वो रेडिकल थे। ही टॉक्ड अबाउट कि देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, एंड प्रॉपर्टी शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वर्किंग क्लास एज वेल एज द पेजेंट क्लास, वर्नाइजेशन सोसाइटी। इनके जो सोशलिज्म थे इट वाज ओनली फिलोसफिकल सोशलिज्म, फिलोसफी पोर्ट्रे कर पा रहे थे, लेकिन एक थ्योरी नहीं था, पॉलिटिकल थ्योरी नहीं था सोशलिज्म का। पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ सोशलिज्म वाज लेड डाउन बाय कार्ल मार्क्स, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक सोशलिज्म। उन्होंने प्रॉपर थ्योरी निकाला सोशलिज्म क्या होना चाहिए। तो सोशलिज्म इज अ ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर में कम्युनिज्म आता है। तो देयर आर वेरियस शेड्स ऑफ सोशलिज्म, वन शेड इज कम्युनिज्म। Karl Marx talks about scientific socialism, that is classless society and communist society. तो दिस इज अ बेसिक इवोल्यूशन। एंड दो टाइप का सोशलिज्म होता है, पहला होता है रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, सेकंड होता है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। नाम में वी कैन डिराइव कि इवोल्यूशन मतलब कि सोशलिज्म दैट विल बी विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, दैट विल नॉट टॉक अबाउट कि दे आर चेंजिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर, they are replacing the government, they will just profess ideas that is public ownership within the democratic system. तो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इवोल्यूशन ग्रेजुअलिज्म, उसमें फेबियन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है बाय सिडनी वेब। फेबियनिज्म क्या है? एक तरह से इट इज अ मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट टॉक्ड अबाउट कि जो मिडिल क्लास का रोल क्या होना चाहिए विथ रिगार्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, और कैसे वो कल्चर एस्पेक्ट में, आर्ट में, हेरिटेज में, हर एक एजुकेशन में, फील्ड में, बिजनेस क्लास, हर जगह में कैसे मिडिल क्लास का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। तो फेमिनिज्म इज ऑल्सो क्रिटिसाइज एज मिडिल क्लास सोशलिज्म, इट इज नॉट अ वर्किंग क्लास सोशलिज्म। फिर दूसरा एक आता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बाय लास्की। ही टॉक्ड अबाउट कि सोशलिज्म इज इंपॉर्टेंट बट आप कार्ल मार्क्स वाले फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ही न्यू द रिपरकशन दैट वाज सीन इन यूएसएसआर, because he was born in 20th century, he knew the repercussion, and at the same time he knew that what unbridled form of capitalism causes World War One, World War Two. That is why he talked about better feature of both the aspect, socialism का भी और साथ by साथ capitalism का भी। That is why he talked about democratic socialism which is based on cooperative model and public ownership of property-less society, land reform, and also labor reform, that is determining working class population, working hour, adequate wages rate, etc. तो ये लास्की के डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो गया। लास्की वाज अ टीचर, प्रोफेसर ऑफ नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दैट इज व्हाई some form of Nehruvian socialism is driven from post civilization as well as from his teacher, that is Harold J. Lasky. His socialism was based on social reform, scientific temperament, 5-year planning system, creation of heavy industries, village cooperative model, and even he talked about creating of the world-class infrastructure such as IITs, AIMS, ISRO, etc. So Nehruvian socialism had element of both civilization, both Lasky socialism as well as some form of Lenin and Stalin socialism. Then regarding the revolutionary socialism, इसका मकसद होता है, इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि रेवोल्यूशनरी, दैट इज दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, दे आर अगेंस्ट द एस्टैब्लिश ऑर्डर। दे टॉक्ड अबाउट बोथ थिंग। पहला 3 एस्पेक्ट है। पहला कि मार्क्स का रेवोल्यूशनरी प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन दैट विल बी अगेंस्ट द एस्टैब्लिश ऑर्डर, कि सोसाइटी के अंदर में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इट विल बी हेल्ड बाय द वर्किंग क्लास। और एक जब स्टेट बन जाएगा तो स्टेट में सबको काम करना ही होगा, इट विल बिकम मैंडेटरी, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेट भी डिसॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ क्लासलेस सोसाइटी रहेंगे। ये मार्क्स का सोशलिज्म है, दैट इज बेस्ड ऑन क्लासलेस सोसाइटी। सिंडिकलिज्म टॉक्ड अबाउट कि वर्कर ओन्ड मॉडल होना चाहिए इन द इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है इट इज लेड बाय कैपिटलिस्ट क्लास।
लेकिन ये सिंडिकलिज्म बात करते हैं कि वर्किंग क्लास हेल्ड करेंगे, वर्किंग जो यूनियन है ये पावर स्ट्रक्चर जो पूरा इंडस्ट्री के अंदर है वो होल्ड करेंगे, रिगार्डिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिगार्डिंग मैनेजमेंट, रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग विल बी ओन्ड बाय सिंडिकेट। देन गिल्ड सोशलिज्म, इट टॉक्ट अबाउट कि सिर्फ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, उसमें गिल्ड सिस्टम होना है। जैसे इसका गिल्ड सोशलिज्म न्यू नहीं है, इंडिया में गिल्ड सिस्टम पहले से था। फॉर एग्जाम्पल देवर सेवर गिल्ड 500 over in South India, as well as in Chalukya dynasty, as well as in Sangam age, guild system with that. Guild मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो रहेगा वो गिल्ड के अंदर में रहेगा, मर्चेंट भी रहेंगे, इन्वेस्टर भी रहेंगे, और इवन वर्किंग क्लास भी रहेंगे, आर्टिसन भी रहेंगे, और साथ ही साथ जो लोग को बेचना है कंज्यूमर वो भी रहेंगे। तो गिल्ड सिस्टम तो बात करते हैं कि एवरीवन विल बिकम पार्ट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूमर, इन्वेस्टर, वर्कर। So there are two types of socialism. So democratic socialism we have discussed. तो इंडिया में कौन सा सोशलिज्म है, वी विल डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट वी विल हाईलाइट लेनिन, स्टालिन एंड ट्रॉट्स्की। इनके सोचने में हाँ, क्या, तो हम कह सकते हैं ना इंडिया में हाँ सर, विच फॉर्म सोशलिज्म इवॉल्व, इवॉल्व हुई है ना। यस। तो when we discussing on लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, तो लेनिन टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की एक वैनगार्ड पार्टी होगा, क्योंकि जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है उनके पास पावर नहीं, उनके पास एक एजेंडा नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, ना उनके पास एक्सपर्टीज है रिगार्डिंग रेवोल्यूशन। कोई एक इंटेलिजेंट मास इंटेलिजेंस, एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए दैट विल मेक द वर्किंग क्लास अचीव द गोल ऑफ कम्युनिज्म। दैट इज वाई लेनिन के सोशलिज्म इट इज बियॉन्ड यूएसआर। ही टॉक्ड अबाउट किसी सिर्फ यूएसआर में रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हर जगह रेवोल्यूशन होना चाहिए, इवन इन colonized society, इंडिया में, इवन इन चाइना एक्सेट्रा। दैट इज वाई ही टॉक्ड अबाउट कॉमिंटन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। हर जगह से जो सोशलिस्ट लीडर लाएंगे वहां पर आएंगे, डिलिब्रेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हर कंट्री के अंदर जाके वापस से सोशलिज्म फैलाएंगे। तो लेनिन का बात है। स्टालिन बात करते हैं कि वो बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ सोशलिज्म इन वन कंट्री, यूएसएसआर। तो स्टालिन इज वेरी कंजर्वेटिव, लेनिन इज वेरी लिबरल रिगार्डिंग सोशलिज्म। ट्रॉट्स्की बात करते हैं कि सोशलिज्म जो है वो वन स्टेप नहीं है, वो हमेशा जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन नहीं आएगा जिसमें कैपिटलिस्ट सिस्टम को आप रिमूव नहीं कर देंगे, तब तक सोशलिज्म हैज टू सक्सीड। उसके लिए परमानेंट रेवोल्यूशन चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कैपिटलिज्म मॉडल है वो इफेक्ट करेगा सोशलिस्ट मॉडल पे, यूएसआर के अंदर भी और बाकी जगह अंदर भी। दैट इज वाई वी नीड टू रिमूव कैपिटलिस्ट मॉडल होल टुगेदर। लेकिन जब लेनिन जब मर जाते हैं 1924 में, देयर वाज अ पावर स्ट्रक्चर, पावर क्लैश बिटवीन द ट्रॉट्स्की एंड स्टालिन। लेकिन ट्रॉट्स्की हार जाते हैं, तो ही जस्ट फ्लेड अवे फ्रॉम यूएसएसआर। स्टालिन जीत जाते हैं, तो स्टालिन फिर पावर स्ट्रक्चर को कमांड में लेते हैं, और फिर स्टालिन सेंट्रिक सिस्टम बन जाता है 1954 आसपास तक। इंडिया में क्या सोशलिज्म, इंडिया सोशलिज्म वेरी वाइड है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रिप्चर एज वेल, महाभारत, अर्थशास्त्र, धम्मा, धर्मा, धर्मशास्त्र की किंग का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट एट द सेम टाइम बुद्धिस्ट आइडियल, मध्यम मार्ग की सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर भारत, सब इंडिया सेंट्रिक भी है। और एट द सेम टाइम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो लास्की के हैं, प्लूरिस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी उनके हैं, या फिर सोशलिज्म दैट इज प्रोफेस्ड बाय इवन जेएस मिल, उनके से भी लिया गया। तो इंडिया में जो इस यूनिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म उसको बोलते हैं नेहरूवियन सोशलिज्म। नेहरूवियन क्यों? क्योंकि नेहरूवियन हेल्डेड द वन डोमिनेट पार्टी ड्यूरिंग आफ्टर द 1947, जब कांग्रेस पार्टी अकेले डोमिनेट पार्टी थी, बाकी सब पार्टी का जो ऑरा था, जो पावर था, बहुत कम था। तो नेहरूवियन within the party system, he was the enabler, he was a originator of the ideology of Nehruvian socialism. He talked about कि social reform होना चाहिए, सोशलिज्म सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, सोशलिज्म इवन इन सोशल रिफॉर्म होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी इन द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो हर एक एस्पेक्ट में सोशलिज्म होना चाहिए, हर एक जगह पर, हर एक ग्रास रूट लेवल पर। तो वो नेहरूवियन सोशलिज्म हो गया। देन रिगार्डिंग द इंडियन पॉलिटिकल थॉट, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन वी हैव डिस्कस। तो 19th सेंचुरी में इंडिया में क्या पर्सपेक्टिव था? तो जब ब्रिटिश कैपिटलिस्ट मॉडल, ब्रिटिश जो इकोनॉमिकली रिपरकशन था सोसाइटी के ऊपर में, इट वाज इंक्रीजिंग, और इट वाज इम्पैक्टिंग द ओवरऑल population of society by including working class,
पेजेंट एक्सेट्रा। दैट इज वाई बहुत लोग आए जो उन्होंने बात किया सोशलिज्म, दैट इज फॉर द वर्किंग क्लास वुमेन, फॉर मार्जिनल सेक्शन सोसाइटी, फॉर दलित एज वेल एज फॉर पेजेंट। तो हम लोग एक एक करके नाम लेंगे। आचार्य नरेंद्र देव, he used the best of idealism of Hegel and Marxism। वो बात की आइडियलिज्म, उन्होंने बताया कि आइडिया से आइडियलिज्म आता है और इकोनॉमिक क्रिटिक्स से मार्क्सिज्म आता है, मैटर्स आता है। लेकिन हम लोग का जो सिविलाइजेशन है इट इज बोथ बियॉन्ड आइडिया एंड मैटर। आइडिया तो है इंपॉर्टेंट, मैटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ही टॉक्ड अबाउट स्पिरिचुअल सोशलिज्म। इसमें बात करें न्यू लाइफ मूवमेंट के अंदर में सिर्फ वर्किंग क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंट भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्लास भी होना चाहिए, वर्किंग क्लास भी होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, सबको होना चाहिए, तभी हम लोग अचीव कर सकते हैं। नेहरूवियन सोशलिज्म डिस्कस। देन जेपी नारायण सोशलिज्म, उनकी आइडियोलॉजी था विथ रिगार्डिंग टू लोक लोक समग्र, दैट इज वेलफेयर फॉर ऑल, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के लिए। तभी हो सकता है जब वी आर अडॉप्टिंग सोशल मेजर इन आर डेली लाइफ, डेली प्रैक्टिसेस। कैसे लाते हैं? टोटल रेवोल्यूशन है ना, ही बिलीव्स इन टोटल रेवोल्यूशन। यस, हाँ, अलग है उसका आधा। सर्वोदय, ही टॉक्ड अबाउट कि लास्ट जो लोग बैठे पंक्ति में जो लोग हैं उनको तक भी पहुंचना चाहिए बेनिफिट। जो हम लोग आज बात करते हैं कि हर घर तक बिजली, हर घर तक पानी, क्यों बात करते हैं? सर्वोदय। संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। क्रांति सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, वो इकोनॉमिक, सोशल, हर एस्पेक्ट में होना चाहिए। और ही क्रिटिसाइज फैबियन एंड मार्क्सिस्ट सोशल एंड कैपिटलिज्म। फैबियन क्यों क्रिटिसाइज किए? बोले कि वो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए, वर्किंग क्लास के लिए नहीं है, पेजेंट नहीं है, बाकी लोग नहीं। मार्क्सिस्ट के लिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि उसमें रेवोल्यूशनरी का बात हो रहा था, डिक्टेटरशिप का बात हो रहा है, वहां फ्रीडम ऑफ राइट नहीं, फ्रीडम ऑफ सेल्फ नहीं, इसलिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया। कैपिटलिज्म क्यों क्रिटिसाइज किया? सिर्फ ग्रीड के ऊपर है, मनी ओरिएंटेड है। तो ही टॉक्ड अबाउट कि एक ऐसा डेमोक्रेसी होना चाहिए दैट इज बेस्ड ऑन सोशलिज्म एस्पेक्ट, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया हर एक डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म दैट इज फॉलोड इन यूएस, ब्रिटेन एज वेल इंडिया। ही लेड ऑन द प्रोसेस ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी। पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए क्योंकि पार्टी जो होता है वो ईगोइज्म होता है, ईगोइस्टिक होता है, हर पार्टी के लिए काम करता है रादर देन नेशन, रादर देन सोसाइटी। ही टॉक्ड अबाउट कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी। एक 4 लेयर होना चाहिए, बेसिक सभा एंड समिति, उसके बाद फिर पंचायत, पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया और पार्लियामेंट हो गया। नीचे से लोग जो ऊपर आएंगे वहां जो सभा में होंगे वो चूज करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट वाले चूज करेंगे स्टेट में, स्टेट वाले चूज करेंगे नेशनल पार्लियामेंट में। ऐसे ऊपर होगा तभी जाके जनशक्ति आ सकता है, राजा धन की लोक शक्ति आता है, जनशक्ति आ सकता है राजा धन की राज शक्ति। तो ही टॉक्ड अबाउट रेवोल्यूशन, ओवरऑल रेवोल्यूशन, 360 डिग्री रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा अगेंस्ट द इंदिरा गांधी इमरजेंसी पीरियड 1975 में, जेपी आंदोलन। देन राम मनोहर लोहिया, he is a very important personality regarding Dalit icon. He is also Dalit icon, also socialist icon in India. He talked about wheel of history and rejected Marx. मार्क्स बात करते थे कि इकोनॉमिक बेस डिटरमाइन करता है कि आइडियोलॉजी क्या होगा वर्किंग क्लास का, और आइडियोलॉजी क्या होगा डोमिनेंट क्लास का और डिपेंडेंट क्लास का। लेकिन राम मनोहर लोहिया बात करते हैं कि जो व्हील ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री हमेशा उसमें अप एंड डाउन आता है। कभी हम लोग बात करते हैं गुप्ता एज वाज अ गोल्डन एज, फिर हम लोग स्टैग्नेशन की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कि मुगल पीरियड में गोल्डन एज था, फिर स्टैग्नेशन की बात करते हैं, इंग्लिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें। तो इट इज अ व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो ही रिजेक्टेड मार्क्स इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ही स्टेटेड कि जो स्टेट है इट इज डिपेंडेंट ऑन सेवरल एस्पेक्ट, पीपल, लोकल बॉडीज, स्टेट एज वेल एज पार्लियामेंट। तो 4 पिलर ऑफ स्टेट होना चाहिए। ही टॉक्ड अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री, सबके लिए वेलफेयरिज्म होना चाहिए, हर के लिए, आम जनता के लिए। जो हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो खुद पे यूज करें, सिर्फ सेल्फ रिलायंस बने, आत्मनिर्भर बने। एंड ही टॉक्ड अबाउट 7 टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन। सिर्फ रेवोल्यूशन जो जेपी नारायण बात किए थे वो स्पेसिफिक था कि संपूर्ण क्रांति, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लेकिन उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। उन्होंने डिस्क्राइब किया 7 टाइप क्या है। कास्ट के अगेंस्ट में, सेक्स के हिसाब से अगर देखा है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्लास में नहीं होना चाहिए, प्लस हम लोग एथनिसिटी का बात करते हैं, लैंग्वेज का बात करते हैं। तो हर एक एस्पेक्ट में से 7 है, पूरा 7 टाइप ऑफ रेवोल्यूशन है, वो बात करते हैं। तो डिस्कस आईपीटी। तो करंट स्टेटस क्या है विल डिस्कस। पहले अनार्किज्म करते हैं, एक और एक आइडियोलॉजी है अनार्किज्म। अनार्की, अनार्की मतलब कि आप बात मानना ही नहीं, आपको इस्टेब्लिश सोसाइटी, इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर है,
एक ऑर्डर है उसको मानना नहीं, उसके खिलाफ रेबल रेबल जैसा एटीट्यूड होना चाहिए, वो एनार्की हो गया। तो सेवरल टाइप्स ऑफ एनार्की हो, पहला एनार्को कैपिटलिज्म, जो नोजिक और एफ ए हाइक ने बात किया था लिबरलिज्म में, वो बात करते हैं कैपिटलिस्ट जो मॉडल है इट इज समटाइम डिपेंडेंट ऑन स्टेट। तो कैपिटलिज्म ऐसा होना चाहिए जिसमें स्टेट पर डिपेंडेंट एकदम नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, और हर स्टेट का रोल सिर्फ दो चीज में रहेगा, एक है लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस, मतलब जुडिशरी, उसके अलावा स्टेट का कोई रोल नहीं है। तो अनार्को कैपिटलिज्म एग्जाम्पल इंडिया अभी वर्ल्ड में क्या अर्जेंटीना का जो बने मिली, वो अनार्को कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। फिर गॉडविन गॉडविन टॉक्ड ऑफ फिलोसफी का एनार्किज्म। एनार्किज्म सिर्फ और सिर्फ बात बोलने में कि हम लोग को सेल्फ रिलायंस होना चाहिए और एक तरह से अपने लाइफस्टाइल के अंदर में सिंपलिसिटी डालना चाहिए, ऐसे सादा जीवन उच्च विचार कोट एंड कोट, इसको फिलोसफिकल एनार्किज्म हो गया। किसी बात आप खुद में ही ओवर है। प्रूजन ऑफ क्रॉप्टिन के बात करते हैं सोशलिस्टिक एनार्किज्म। ही टॉक्ड अबाउट कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कैसे एक सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन लाके एनार्की कर सकते हैं। पैसिफिक एनार्किज्म इट इज गिवन बाय टॉल्स्टॉय एंड गांधी। पैसिफिक एनार्किज्म एनार्की है लेकिन आप कंट्रोल्ड है, कंट्रोल एनार्की, इलाइटेड एनार्की है। गांधी बात करते हैं राम राज्य दिल में, तभी राम राज्य सोसाइटी के अंदर में आ सकता है। तभी शेर सत्याग्रह बात करते हैं, सत्याग्रह का बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं गांधी जी। तो एनार्की है लेकिन कंट्रोल्ड है, तो वो हो गया पैसिफिक एनार्किज्म। तो करेंट स्टेटस क्या है सोशलिज्म का? तो सोशलिज्म इज डिफाइंड एज अ हैट, कि सबको चाहता है हैट पहन ले, हर कोई हिसाब से अपने हिसाब से हैट पहनता है। इट इज डिस्क्राइब्ड हैट, सबको चाहता है कि अपने हिसाब से डिस्क्राइब करे, कोई सेट पैटर्न नहीं है, जैसे लिबरलिज्म का है, जैसे मार्क्सिज्म का है, वैसे सोशलिज्म का नहीं है, सबको अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। लेकिन करेंट स्टेटस क्या है कि जो सोशलिज्म है इट इज वेरी यूनिक, इट इज वेरी मोल्डेबल और वाइब्रेंट और डायनेमिक है। कैसे? जब हम लोग वो पूरा वर्ल्ड जब जा रहा था लिबरलिज्म न्यू लिबरल एटीट्यूड की तरफ में, आफ्टर यूएस विक्ट्री इन 1991 एंड डिसोल्यूशन ऑफ यूएसआर, उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बात हुआ रिगार्डिंग एन लिबरल एटीट्यूड। लेकिन उसके बाद जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इवन ड्यूरिंग कोविड पीरियड, स्टेट का रोल बढ़ गया। कोविड वैक्सीन कोई दे नहीं पा रहा है, तो भारत बायोटेक ने दिया। इंडिया गवर्नमेंट ने बताया कि कोविशील्ड का कितना प्राइस कैपिंग होना चाहिए, ताकि हर जगह में हम लोग कैप करें। इंडिया का रोल होता है रिगार्डिंग टू एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जब भी प्राइस बढ़ता है शुगर केन का, जब भी प्राइस बढ़ता है व्हीट का एक्सपोर्ट का, तो हम लोग कंट्रोल करते हैं। जब उस ओवरऑल फिर हम लोग बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का, आरटीई का, तो कहीं ना कहीं स्टेट का रोल है। इवन इन लिबरल कंट्री यूएस में और इवन इन यूके, वहां पर ओबामा केयर है। यूएस में भी बात हो रहा है कैसे हम लोग जेंडर इंक्लूजन पॉलिसी लेके आएंगे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर में, कैसे सैट के जो स्कोर है उसमें भी हम लोग रिजर्वेशन नहीं बोलेंगे, कैसे हम लोग अफर्मेटिव एक्शन लेके आएंगे। तो हर जगह कहीं ना कहीं सोशलिस्ट मॉडल है ऑन द बेसिस ऑफ कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी होना चाहिए, हर जन को सर्वोदय के बेसिस पर होना चाहिए, वेलफेयरिज्म अप्रोच होना चाहिए, और जो एक बेसिक जो जस्टिस होता है वो हर तक पहुंचना चाहिए। तो जो सोशलिज्म वो हमेशा रहेगा एंड इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, बिकॉज जो स्टेट होता है इट इज इलेक्टेड, इट हैज अ ड्यूटी टू सर्व द पीपल, जो कैपिटलिस्ट मॉडल में नहीं है। इसलिए सर सोशलिस्ट हमेशा रहना। इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, मिक्स स्टेटस है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म। Okay. देयर इज नो क्वेश्चन सर। So, what you can say, or you can throw light upon the idea, the evolution of socialism in India in pre-independence times. Can you speak for a line or so, one moment or so in this? Yes, sir. The socialism as a principle was adopted by several leaders even in 19th century, pre-independence India, but slowly it got channelized and structure based with the help of N.M. Lokhande, Working Class Agitation, Factory Act 1891, 1892, then increasing economic critique of colonial power laid down the new ideology of socialism as a tool for ट्रेड यूनियनिज्म 1920 में बनता है AITUC। उसके बाद फिर देयर इज अ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड सोशलिज्म एज अ प्रिंसिपल was also adopted as a social reform, for example constructive movement in NCM
एंड CDM उसके बीच में भी। तो सोशलिज्म वॉज अडॉप्टेड एज अ न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ लाहौर डिक्लेरेशन, जिसमें हाँ 1931 में जिसमें बात हो रहा था कि सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी बनाएंगे हम लोग कंट्री को, इंडस्ट्री बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री बनाएंगे, एंड एट द सेम टाइम जो सोशलिस्ट मॉडल रहेगा इट विल बी बेस्ड ऑन वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर सेंट्रिक ऑफ द पीपल। बस ये इवोल्यूशन स्टार्टिंग हाँ ठीक है, कम्युनिज्म ऑल्सो इवॉल्व इन द टाइम 1910। पीरियड. Russian Revolution is taking place 1910 and 20s. So socialism is an ever-evolving concept, and it is linked with the dynamicity and the fluidity of the society. Socialism believes in the sensitivity. It believes in the idea that society must embrace different kind of elements, diversity, and everyone must get a chance. So the idea of like looks, yeah, like looks samgraha and sarvodaya, and total revolution, or the kind of idea that we have been talking previously. So it is an ever evolving point, and the most important point is that in today's time, in the liberalization time, in the time of the market, what we can say, जो हम कहते हैं market economy, capitalism, and the changing role because of technology and even coming of the artificial intelligence. In that context, from the paper to perspective, we can look into this. Yes. Wonderful. Thank you very much. And we will get back with the next session, trying to bring basic ideas, trying to bring simple, innovative understanding, and also the role which one can play while reading and understanding the text. Thank you very much, and wishing all of you all the best for success in the UPSC examination.